Very good evening, friends. Today we have the pleasure of having with us CA आशीष मखीजा जी, जिनका नाम सर अपने मेरी ही एक गुप्ता जी मेरी वीडियो नहीं स्टार्ट हो रही है. इट सेज द होस्ट हैज स्टॉप्ड इट. अच्छा, एक मिनट सर, वो सर मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ सर. हाँ जी, हाँ जी. ओके. अब आप कर सकते हैं सर स्टार्ट. हाँ जी, हाँ ओके. जी. हाँ जी. या नाउ यू कैन सी मी. ओके, ग्रेट. तो very good evening, friends. Today we have the privilege of having with us CA आशीष मखीजा जी, जिनका नाम अपने आप में ही सिनोनिमस है विद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. बहुत सारी एसोसिएशंस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे प्रोफेशनल बॉडीज के साथ साथ जुड़े हुए हैं. और इनकी जो भी बुक्स हैं, जो भी इनके वर्क्स हैं, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स. मैंने आपके साथ प्रोफाइल इनका ऑलरेडी शेयर किया हुआ है ग्रुप में, एंड ऑल आर वेटिंग eagerly to listen to him. Today we have invited him to deliberate on issues regarding home buyers. तो होम बायर्स में कोर्ट में इनिशियल गुप्ता जी आप म्यूट हो गए हैं सर. तो यू आर म्यूटेड अगेन सर. there are 4 cases pertaining to home buyers. और तो बहुत सारे इश्यूज हैं. उसके अलावा भी क्योंकि आशीष मखीजा सर आए हैं, तो और भी बहुत सारा लालच रहता है लोगों को कि भाई और भी कुछ पूछ लें. तो मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज भी भेजे हैं, बट आई वुड रीड. आई नो कि आपको टाइम नहीं मिला होगा देखने का, क्योंकि अभी अभी मैसेज गए थोड़ी देर पहले ही, जबकि आप यू वर इन द मिडल ऑफ सम प्रोग्राम. तो विद दिस इट इज ऑल योर सर. Okay. So thank you, Gupta ji. I think very good evening to all the friends. I think this is an extremely good opportunity for all of us to interact. And I believe most of you are the limited insolvency exam aspirant. Is that correct, Gupta ji? Yes, sir. Yes, sir. All are appearing. All are Okay. appearing either in July or August or sometime, someone in some. Okay, okay. So I think, in fact, the syllabus of limited insolvency has undergone a change, and it is now more of a case study based rather than the theoretical thing. Of course, those theory parts are there. So what you need to do is you have to actually formalize a strategy to pass the examination. This is extremely important. And the modules relating to like IBC or case laws or allied laws or case studies, they are extremely important. These are all practical aspects which are there. So we need to really look at these aspects also. Well, today I believe I am supposed to speak on the home buyer's position. So let me start in the right earnest. We will cover a few of the cases, and then whatever questions are there, I could see that some questions have been sent by Mr. Gupta on my WhatsApp, but unfortunately, I could not have a look at it because I was in some other session which just ended. So maybe you can read out and then we will answer those. I'll answer those. We'll keep you see that in mind. Okay, Gupta ji, before I start, tell me how long I have to speak on this. सर वो तो आपके ऊपर है, हम तो सारी रात सुन लेंगे. हमें कोई दिक्कत नहीं है. एटलीस्ट 1 hour सर. आफ्टर 1 hour वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर. Okay, okay. Chalo, theek hai sir. Okay, you are too generous, and I must appreciate that. Okay, so friends, let's start in the right earnest. The first is, you see, as far as the position of the home buyers is concerned, let me take you back to the old history so that okay, somebody is saying my audio is low. Can you hear me, sir, easily? यस सर, नाउ इट्स बेटर. Okay, 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 okay. I think, sir, you have to increase your audio level. I think just increase that volume. I think that will be good. Okay, so as far as the home buyers are concerned, well, what happened was, when an application under Section 7 was filed by one of the home buyers, and that too in the case of Nikhil Mehta versus AMR Infrastructure, that was the first case. When one of the home buyers approached NCLT,
that I want to start the CIRP process against AMR structure because the company has failed to give me the flats. Well, the matter came up before the principal bench of NCLT. Justice M.M. Kumar, who was heading it, he asked a simple question. He said, tell me whether you are a financial creditor of the company. He said, yes, sir, I am the financial creditor. He says, okay, let us go to the definition of section 5, subsection 8. Because 5, 7 and 5, 8, basically they deal with the financial creditor and financial debt. So, friends, I think it will be very good if we can open the book. Gupta ji, if you have the book or maybe somebody else, maybe you can read. I'll also open my book, but probably we can read section 5, subsection 7. हाँ है सर, book is with me. Yes sir. Correct. So financial creditor definition is very simple. It says financial creditor means a creditor to whom the financial debt is owed. Well, I don't need the book to read the definition, so I can read it. So Gupta ji, बताइए यही definition है. Financial creditor means a creditor to whom the financial debt is owed. So this is the definition which is given in 5.7. Then to know the meaning of the word financial debt, we have to read 5 subsection 5 subsect clause number 8, which is there. So that is also very important definition which is given in the code section 5 subsection 8. I don't know how many of you read it, but please read it very carefully, because at the end of the day, the definitions are very important, and unless we understand the definitions, well, we are not getting anywhere insofar as the IBC is concerned. So financial debt says financial debt means a debt along with interest, if any, which is disbursed against the consideration for time value of money and includes, then it starts from clause number A and goes up to clause number I. So there are A to I clauses are there. So first definition is very important. Financial debt means a debt along with interest. So now you must know the definition of a debt. So for the definition of the debt that is not given in section 5, you will have to go back to section 3. And I believe it is given in section 3, subsection 10, the definition of debt is there, because one definition goes into another. So it is very important. 311, I believe 311 is the definition of the debt, which actually reads as the debt means a liability or obligation in respect of a claim. Now it uses the word claim, isn't it? And of course, it has got second part to it, which is due from, you see, any person, which may include a financial debt, operational debt. So that is a separate issue. But then it now refers to claim. So for claim, you will have to go to section 3, subsection 6. So now the claim, what is the meaning of the claim? So claim, actually, you'll have to go to the meaning of 3.6, and it says claim means right to payment. And that is the first part. The second part is right to remedy for breach of contract, which gives a right to payment. So this is all, these all definitions are mixed up. So when this question was put to the lawyer who was representing him on infrastructure, the judge asked him that, look, tell me, sir, whether you have given a debt which was disbursed against the consideration for time value of money. In simpler words, did you give the money to earn interest? So the home buyer's lawyer or the counsel said, no, my lords, I gave the money to buy the flat, to get the flat and not to get the interest. So he says, then you do not fall within the main definition of meaning definition of financial debt. So you are not a financial creditor. And then they went into all the other inclusive clauses, right? Money borrowed against the consideration, against the payment of interest, and so forth, A to I. And the judge examined each one of them. They said, you do not fall under A to I. So you are not a financial creditor. Then as the lawyer was very smart, he said, sir, treat me as an operational creditor. He said, okay, let us go to the definition of operational creditor. So operational creditor's definition is given in 520 and 521. Operational creditor means a creditor to whom the operational debt is owed. This is the definition, right? And of course, it includes the person to whom the debt has been legally assigned to or transferred to. Then we go to 520, which is the you see correct meaning of the operational debt. It says operational debt means a claim in respect of the provision of the goods or services. So two things are there, goods or services. And then it says including employment, or it says a debt in respect of the dues which is owed to the government. So
basically, if you ask me, there are four types of operational creditors which are included and no one else. If somebody supplies goods to the company, well, he becomes the operational creditor. If he rendered services to the company, he becomes the operational creditor. Employee of the company, because he has rendered services, their debts are specifically included. So even employees are considered as OCs. And then there are government dues, like including even the, you see, you can say the GST dues or income tax dues or PF dues or ESI dues, every government authority will be considered as an operational creditor. So now the judge asked him, he says, tell me, did you render services to the company? They said, no, sir. He said, did you supply goods to the company? They said, no, we gave money to get the flats. He said, are you an employee of the company? They said, no, sir. He said, are you government? He said, no. He says, you do not even fall under operational creditor. So application rejected. So that was the first case. And that exactly happened in December 2016 or January 2017. I'm talking of very early days. At that time, I was in the United States at that time. Well, when I read that order, well, I was not happy with that order. And I wrote a blog on that at that time. And by that time, the blog was published. It was a day in India. And after 2 days, I got a call from one of the persons in India saying that, sir, have you written this blog? I said, yes, I've written this blog. He said, sir, I'm the person, I'm the counsel whose application has been rejected. Now you say that this is not a good order. But so how can I now I want to file an appeal? So tell me what are the grounds which I should take in the appeal? So I asked that person कि ठीक है यार advice तो मैं दे दूंगा पर ये बताओ फीस कैसे मिलेगी? So anyhow that was in a lighter vein. So he said he was a colleague obviously. You see we belong to a fraternity. He was a lawyer. So I advised him. तो मैंने उसको क्या advice किया? मैंने दो advice उसको दिया. पहली बात I told him I said look first you send me the agreement which you have entered with the builder. So he sent me that agreement. I reviewed that agreement. And then I gave him 2 points. I said, you argue on these 2 points and you will win the case before the appellate authority. So what are the two grounds which I gave? I said, number one, your agreement contains an assured return clause. Assured return का clause आपके इसके अंदर है. Assured return का जो अगर आपके पास clause है, so then you fall under the that you have disbursed the amount for the consideration of time value of money. So that will be definitely be there. And the other aspect was the relating to, I said, go to section 5, clause 8, subclause F. Now that is an extremely important clause, my dear friends. 5.8F is a very, very important clause which you must read. Because if, without reading that, I don't think we can lead, you see, ourselves to any. Okay. So what is the clause number F? It says, I'll just read 5.8 once again. Financial debt means a debt along with interest, if any, which is disbursed against the consideration for time value of money and includes A, B, C, D, E. Now let us read D. Any amount which is raised under any other transaction. I'm skipping the in-between portion, having the commercial effect of borrowing. I believe this is the language which is used, right? So having the commercial effect of borrowing, what does that mean? I said, look, you have given money as a home buyer to the builder. If the builder would not have received your money, how he would have built the flats? He would have borrowed the money from banks or from any other sources, or he would have put in his own money. So the money which you have given, does it have a commercial effect of borrowing or not? So according to me, it has a commercial effect. Your case is covered under 5.8F. So you please file appeal under two grounds. Number one, assured return, because your agreement contains assured return, and B, under 5.8F. So they went to NCLAT, NCLAT, and NCLAT actually considered their appeal and rejected the ground of 5.8F. So NCLAT says, no, 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 there is no commercial effect of borrowing in this case. So we are rejecting this ground. But looking at your agreement, which contains the clause of assured return, well, in that sense, we are treating it as the, you see, it falls under the definition of 5.8 because it has the
uh, impact of time value of money, because assured return means you are getting something in return. So his appeal was accepted, and but now the problem was home buyers were divided into two parts. One, those who have assured return clauses in their agreement, they are considered as financial creditors and their applications can be admitted. And the second were the those who did not have their assured return clause. They were not neither the financial creditors nor the operation creditors, and they were not to be considered. So now everyone has to look at the agreement first. Now this created a lot of problem. In the meantime, what happened? One of the cases relating to JP that went to Supreme Court directly. One of the home buyers, Chitra Sharma, she went to Supreme Court straight away. And I'll tell you the background of that case also. But in the meantime, not only one case, even Amrapali's case also reached the doorstep of Supreme Court, and then Unitech also came. So three big builders having 40,000 home buyers, 30,000 home buyers, 20,000 home buyers, their cases went straight to Supreme Court. Now, in Chitra Sharma's case, what was the issue? The issue was that some of the home buyers had already filed, or like not the home buyers, Axis Bank actually had filed an application under Section 7 for starting the proceedings against JP Infratech Limited, JIL, that please start because they have failed to pay. Now, the matter went to Allahabad NCLT because the head office, the registered office of the JP Infratech was in UP. So obviously, Allahabad the NCLT got the jurisdiction. First, the company JP Infratech filed an objection that this application is not maintainable and so forth. But suddenly, after 1 or 2 months, they took a U-turn and they withdrew their reply and they said, "Sir, we agree, start the proceedings." So Allahabad, you see, NCLT, well, when there is no objection, they actually started the proceedings. They said CIRP started, IRP appointed. Anuj Jain was appointed as the IRP. Now, Chitra Sharma went against that order to the Supreme Court, saying that, look, my lords, insofar as this company is concerned, Axis Bank has given a loan only of 200 crores. And there are 30,000 home buyers who have given more than 1,000 crores to the company. And as per the IBC, these are not the financial creditors unless we have a assured return clause, and none of us has an insured return clause. So how our interest is protected? We are kept outside the decision making process. And now the people who have given only 200 crores will decide the fate of the company, including the home buyers. Well, Supreme Court was convinced on this and they said, okay, we will hear the matter in detail. So they give a stay order against the order of the NCLT Allahabad. Now, another problem arose because of this. The home buyers were very happy that they have got a stay. But then when they came back home, they realized that, oh, if there is a stay order, now who comes back in the management of the company? Now, instead of IRP, the management of the company goes back to the original promoters now, like Mr. God, they will now manage it. So they say, this, we never wanted this. So they went back again to the Supreme Court. Again, an application was filed in the main writ petition. And then Supreme Court modified its order. They said, okay, we are not staying the CIRP. CIRP can go on. The IRP can, start functioning. But he will also, consider the views of the home buyers and so. Certain interim reliefs were granted at that stage. And they took upon themselves that we will try to find a buyer. So they said, you will not go ahead with the CIRP process, but you will continue to manage the company. So there was a stay which was modified. Well, Supreme Court kept that case to itself for almost a year. And they tried negotiating with many other government and many other authorities, including NBCC and all, but nobody was willing to come. So ultimately, Supreme Court was also frustrated. They said, there is no point. Let the CIRP be started. And they passed another order, which is also a very important order. Of course, that is not in your syllabus now. Earlier, it was in their syllabus of LIE. Now, of course, that has been taken out. Well, what they did was Justice Nariman used powers under Article 142 of the Constitution of India, which I call it as a Brahmastra.
Under Article 142 of the Constitution of India, the Supreme Court can pass any order to do the complete justice between the parties. So they said, we are starting the period of CIRP from today, because already 1 year has been lost. The CIRP period is over, but still we are wiping off that entire period. We cannot do it under the provisions of IBC, but we are using our extraordinary powers under Article 142, and the period of CIRP will start from today. And we are asking the IRP to start that process, invite resolution applicants, and then go ahead with this. So this was one of the things, the interest of the home buyers was protected during this period. And in the meantime, what had happened? Now look at this, the change which happened. The government actually amended section 5, subclause clause 8 and subclause F in the meantime. And that amendment, my dear friends, came on 6/6/2018. And that was exactly what I was mentioned in my blog, that you fall under the commercial, you see, borrowing, commercial effect of borrowing clause, which is there in 5.8F. So 5.8F was amended, my dear friends. Please look at your books. An explanation has been added with effect from 6/6/2018. And the explanation very clearly says, now, for the purposes of this subclause, any amount raised by an allottee, from an allottee, under a real estate project shall be deemed to be an amount having the commercial effect of borrowing. Now look at this. This is exactly what I had given an opinion. And now it was clarified. And when the amendment was made on 6/6/2018, the Insolvency Law Committee, which gave its report, it said, we are giving this explanation as a matter of clarification. So it was a clarificatory amendment. They said this was the intention from the very beginning of the law, but we are now clarifying for the sake of clarification, that any amount which is raised from an allottee under a real estate project shall be deemed to be have the effect of commercial effect of borrowing. And the meaning of the word allottee and the real estate project, they were borrowed from RERA, Real Estate Regulation Development Act. Regulation and Development Act. So you go to RERA, you find the definition of allottee, you read the definition, you read the definition of real estate project, so you'll get that meaning. So now, with this amendment, what happened? All the home buyers became financial creditors. So this was the impact of the change which happened. And then Supreme Court, while dealing with that Chitra Sharma's case, also recognized that 5.8F has been amended. And therefore, the COC is also to be reconstituted, including the home buyers, and then the process will start. So therefore, they wiped out the entire period under Article 142 using Brahmastra. So this was one stage of it. The second stage came. Obviously, the builders were not happy with this amendment. None of the builders and developers were happy. So they challenged these provisions before the Supreme Court, the 5.8F particularly. Of course, there were related provisions which were there. So let us read that also. Section 25A is one of the sections which was added, and 21(6)A was also added. So these are the two sections which are very important when you are talking about home buyers, friends. You have to read 5.8F together with 21(6)A. 6A was added there, and then 25A. Now, what does 21(6)A says? 21(6)A talks about that when the amount is owed to a class of creditors, I'm referring to subclause number B of 6A, right? Subclause B deals with the class of creditors exceeding a particular number. So that they use the word class of creditors. What was the problem? Let us try to understand the problem. I think then you will know why this clause has been brought in. Now, if all the home buyers become financial creditors, obviously now they are part of COC as per section 21. Section 21 says that COC will consist of all financial creditors. Now imagine a case where 20,000 people become part of the COC. Now the poor IRP, where he will hold the COC meeting? Will he hold it in a stadium? Now it is impossible, isn't it? So now to work out a way, they were actually classified as class of creditors, and that is why clause number B was inserted. And class of creditor means, which is not defined in the code, it is defined in the regulation. It says class of creditors means where there are 10 or more members in a class. So if there are more than 10 home buyers,
then obviously they will be considered as a class, and then all of them will not be a part of the COC. They will be represented through an authorized representative. But if there are less than 10, supposing there are only 9 home buyers are there, then all of them will be a part of COC in their individual capacity. No quarrel on that. But if there are 10 or more, then they will not be a part of it. Who is going to represent them? Some authorized representative. And that AR will also be an insolvency professional, not the person who is an IRP or RP, but somebody else. And he will represent and he will take their wisdom, and therefore section 25A was also inserted, powers and duties of the authorized representative. So 25A was also added, rights and duties of the authorized representative. So उसको आप डिटेल में जरूर पढ़ें, और उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि कैसे वो डिसीजन लेगा, उसकी क्या पावर्स हैं, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, और कैसे उसको वोट करना है. बेसिकली इफ यू रीड 25A, तो उससे ये समझ में आता है कि 25A इज बेसिकली ट्रीट्स ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एज अ पोस्टमैन ओनली. उसकी अपनी कोई पावर नहीं है. वो जो विजडम पीछे से आएगी, जो वोटिंग पैटर्न आएगा, वो वोटिंग पैटर्न वो सीओसी में लेके जाएगा और आरपी को इन्फॉर्म कर देगा और उसी हिसाब से वोट करेगा. अपना दिमाग नहीं लगा सकता. So, but he is a conduit. Basically, he is the person who is representing all these people. But इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, and which is very important is क्योंकि questions can be expected. You can expect on subsection 3A of 25A. 25A 3A बड़े ध्यान से पढ़ें, और अगर गुप्ता जी के पास बुक है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार पढ़ लें. So it will be very good if we can read it for the benefit of all of us. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो मैं पढ़ता हूँ सर 25A 3A. Sir, 25A 3A says, notwithstanding anything to the contrary contained in subsection 3, the authorized representative under subsection 6A of section 21 shall cast his vote on behalf of all the financial creditors he represents in accordance with the decision taken by a vote of more than 50% of the voting share of the financial creditors he represents who have cast their vote. Now, friends, this Provided. is very, इसको अभी छोड़ देते हैं, हाँ प्रोविजन जी ऑफ सर, प्रोवाइजर. हाँ जी, हाँ जी. अब देखिए 25(3)A एक बड़ी स्पेसिफिक सर्कमस्टांस को डील करता है. एंड व्हाट इज दैट सर्कमस्टांस? द सर्कमस्टांस इज वेरी क्लियर इन दैट सेंस दैट लुक, there if supposing there are 20,000 home buyers are there, and out of 20,000 home buyers, they have got, say, total amount due is say 120 crores. अब सारे तो वोट नहीं करते हैं क्योंकि सारे लिटरेट भी नहीं है, आई मीन टेक्निकल सेवी भी नहीं है, टेक सेवी भी नहीं है. सो जनरली स्पीकिंग ट्रेंड ये देखा गया था कि 40 से 50% होम बायर ही वोट करते हैं, बाकी नहीं करते हैं. मे बी 60% कर देते हैं किसी केस में, बट इससे बाकी 40% कभी भी वोट ही नहीं करते, उनको पता भी नहीं होता. So this actually section 3A was added little later on. It was not added initially. It was actually added in, I believe in August 2019, later on. What was the reason? The reason of adding this was that if the home buyers cannot vote fully, supposing say 40% नहीं vote किया, अब COC के डिसीजन के लिए आपको कितना चाहिए? 66%. अब 40 ने वोट किया, 60 ने वोट ही नहीं किया, तो जो एब्सेंटिंग होते हैं उनका वोट नेगेटिव वोट माना जाता है, तो रेजोल्यूशन तो कभी पास ही नहीं होगा, क्योंकि यू रिक्वायर 66% फॉर सम यू सी डिसीजन मेकिंग व्हिच इज गिवन अंडर सेक्शन 28. आई थिंक गुप्ता जी ने अभी तक ये एक्सप्लेन कर दिया होगा कि कितने टाइप के वोटिंग पैटर्न आपको चाहिए होता है, because the law requires that some decisions can be taken by 51% majority, some decisions can be taken with 66% majority, and some decision can be taken with 90% majority, which is only one section, right? Section 12A requires super majority of 90%. But other sections, particularly section 28, if you read section 28, and then there are many other more sections are there, like 12(2), 21(2), and so many other sections are there. If you read them, 27(2), 28, and then 33(2) also, they require 66%. अब सपोजिंग 40% या 50% या 55% भी अगर होम बायर्स वोट करेंगे, so then the resolution is not deemed to be passed because it is not 66%. So now this clause was brought in, particularly this subsection, which very clearly says that if the voting
if the more than 50% of the home buyers who have voted, so please remember those who have voted. So अब तीन सिचुएशन हो गई. सपोजिंग देर आर 100 होम बायर्स, 100 में से सिर्फ 60 ने वोट किया, राइट? अब 60 ने भी सपोजिंग फेवर में वोट कर दिया तो भी रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता था, क्योंकि 66% चाहिए. बट इस प्रोविजन को इन्होंने चेंज कर दिया. इन्होंने कहा अगर 60% ने वोट कर दिया, अब हम इसको 100% मान लेंगे. अब इसके अंदर देखेंगे कि 51% वोट कैसा हुआ, मोर देन 50% ने कैसा वोट किया. नॉट 51%, इट इज मोर देन 50%. So if more than 50% vote in favor, then this subsection says, then it shall be deemed that the entire body of the home buyers have voted in that favor. That means then more than 50% will be equivalent to 100%. So it is present and voting. So those who have not voted, their vote will not matter. Those who vote, उसमें से हम 50 more than 50% देखेंगे. अगर more than 50% उनमें voting में आ गया, then it will be deemed that all the home buyers have voted in accordance with that plan. So this is the way the things have been defined now. So इस पे आप expect कर सकते हैं कोई case study भी, because ये बड़ा complicated सा section है. So please remember that. And if you have any questions, probably we'll be able to do it in a little while. Let me move forward. So 25 is very important. Then friends, as far as regulations are concerned, if I'm not wrong, you will have to read regulation 4A and 16A along with this. तो आपको 5 चीजें इकट्ठी पढ़नी है. 58F, 21(6)A, 25A, regulation 4A and regulation 16A. अगर आप ये 5 चीजें इकट्ठी पढ़ लेंगे, then I think you will become an expert on the particularly on class of creditors or home buyers particularly. Okay. अब उसके अंदर 4A और 16A अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि AR को कैसे चूज करना है, 3 नाम कौन प्रपोज करेगा, उनकी वोटिंग कैसे होगी. और उसकी वोटिंग का थोड़ा डिफरेंस ये बता देता हूं. इट इज द ड्यूटी ऑफ द IRP to pick up 3 names. So what he will do is IRP will ask his friends, those जो IPs होंगे, वो कहेंगे साहब अपनी कंसेंट दे दो whether you want to act as an AR or not. क्योंकि AR की फेस एक थोड़ी लिमिटेड होती है. उनको एक नंबर ऑफ बायर है तो 15,000 मिलेगा, इससे 10 से ज्यादा है, 100 तक हैं, 10 से 100 है तो 15,000 है, 100 से 1,000 है तो 20,000 है, 1,000 से ऊपर है तो 25,000 की फीस है. तो AR की फीस जो है वो फिक्स्ड फीस होती है. तो ही विल सजेस्ट 3 नेम्स. तो क्या होता है कि जब फीस उनकी जब नाम उसके पास आ गए तो नाम के बाद क्या होगा कि उसको वो जो अखबार में नोटिस निकालेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट, उसमें वो तीनों नाम लिख देगा IRP. और जब ये होम बायर्स अपना क्लेम फॉर्म फाइल करेंगे, एंड द क्लेम इज टू बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर CA. इनके लिए अलग अलग नया फॉर्म आया था CA. और अगर ज्यादातर लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो मुझे लगता है भूल नहीं पाएंगे CA, तो CA आपको याद रहेगा. सो क्लास ऑफ क्रेडिटर के लिए जो फॉर्म है वो CA फॉर्म है. सो CA फॉर्म के अंदर उनको नाम एक लिखना पड़ेगा आउट ऑफ दीज 3 नेम्स, दैट व्हिच नेम दे आर सिलेक्टिंग टू बी रिप्रेजेंटेड एज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव and the person who gets the maximum votes. और यहाँ पे वोट, they are not depending upon the voting share, not on the value of debt, not on the value of claim. It is number, simple number. Supposing 300 लोगों ने claim file किया और 300 में से 200 people have selected the name of A, then A will be selected as an AR. And then IRP will move an application to the adjudicating authority for the approval of that name, and then he will be appointed as an authorized representative. And then he will attend the first COC meeting. So the सारा process COC meetings से पहले करना पड़ता है, even before the first COC meeting. So this is the overall analysis of the points which are dealing with it. Now, coming to the second stage. After these amendments, well, the builders were not happy. Now they actually went to the Supreme Court and they said, look, these provisions are bad in law and they must be quashed. और उनके ग्राउंड्स बड़े सिंपल थे. ग्राउंड्स में उन्होंने कहा कि साहब देखिए ऐसा है, इसका मतलब ये हुआ कि सपोजिंग मेरे पास 1000 होम बायर्स हैं और एक होम बायर डिससेटिस्फाइड है, तो वो भी मेरी CIRP स्टार्ट कर सकता है, बाकी 999 सफर कर जाएंगे, उनको प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है. But एक home buyer can go to the court and can get my CIRP started. Now this will impact the entire project also, and it will impact the company as a whole. So well, this is something which is not desirable. This is not the intention of the law.
This matter actually was challenged in Pioneer Urban judgment. There were a lot of writ petition, but Pioneer Urban was taken as a lead case. So Pioneer Urban की judgment है, उसको आप बड़े ध्यान से पढ़ें. और मेजर उसमें यही है. At the end of the day, Justice Nariman said, I am upholding section 5(8)(f) explanation. और उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि नंबर 1, this was a clarificatory amendment. और clarificatory amendment are always retrospective in nature. तो उन्होंने ये लिखा है कि साहब शुरू से ही इंटेंशन लॉ की क्या थी. द इंटेंशन ऑफ द लॉ वाज दैट होम बायर्स विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. दिस वाज ओनली अ मियर क्लैरिफिकेशन. So that was upheld, which my opinion was also the similar, and I was happy that my opinion was kind of upheld by the Supreme Court. So this was one of the things. The second, the logic which they said that investor, one single home buyer can do that, तो उसमें उन्होंने एक छोटा सा लीवे छोड़ दिया. Supreme Court said that in case there is a speculative investor, कई बार क्या होता है कि genuine home buyer नहीं होते हैं, कुछ investors होते हैं speculative, कि आज हम flat में पैसा लगा देते हैं, कल हमें ज्यादा पैसा मिलेगा. So these are known as speculative investments. So they say if it is a speculative investment, if the person is not a genuine home buyer, this will be the duty of the NCLT to see at the beginning. So it's not that blindly NCLT will decide, okay, the person is a home buyer, I'm starting CIRP. No, they say they will have to separate the grain from the chaff, and they will have to identify who is a genuine buyer and who is not a genuine home buyer. So if it is a speculative investor who is just trying to arm twist the company, then the application will be rejected despite the fact he or she is a financial creditor. So अब ये NCLTs ये इस डिटेल में जाते हैं, उसको देखते हैं कि आपने पैसा जो लगाया एज ए जेन्युइन होम बायर लगाया है या एज ए स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर लगाया. सपोजिंग आपके नाम में 4 फ्लैट्स हैं, obviously you are not a genuine home buyer, then that means you are a speculative investor, isn't it? So वो these things are very material. अभी कई केसेस आए, कहा साहब मेरा जॉइंट वेंचर हुआ था बिल्डर के साथ, मेरे को बिल्डर ने 200 फ्लैट देने थे, नहीं दिए, मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर हूं, तो एनसीएलटी रिजेक्टेड. दे सेड लुक यू आर द पार्टनर, you were a speculate, you were investor, so you are not a genuine home buyer, so I am rejecting your application also. So these things definitely you see are being considered by the Supreme Court in the by the NCLTs. So this was the history of the home buyers cases which have been there, which has been marred by a lot of history. अब क्या हुआ सर, एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम और आ गई. अब ऑब्वियसली बिल्डर लॉबी स्ट्रांग है, उनकी एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो गई और प्रोविजंस जो है अपहोल्ड हो गए. 5(8)(f), 21(a) सारे उन्होंने चैलेंज किए थे, 25(a) सब अपहोल्ड हो गए. अब नाउ द गवर्नमेंट, और हुआ क्या इन द मीन टाइम, every Tom, Dick and Harry, even a single home buyer started filing application before NCLT. And I will tell you, during that period, particularly 2019 or 2020 का beginning का जो period है before the COVID, the NCLTs were overburdened. आप मानोगे नहीं, अगर एक बेंच के अंदर 50 केस लगे हुए हैं तो 40 to 45 केसेस रियल एस्टेट के होते थे. So it was going to that extent. They were too overburdened, and most of the real estate companies came into CIRP during that period only. That was the problem which was coming. तो इससे क्या हो गया कि NCLTs बहुत overburden हो गई. अभी एक और आपको example देता हूँ, you will understand. In one of our cases, which is a real estate case, 4,500 home buyers are there. 5 projects the company was carrying on, and they were projects in Noida, Greater Noida, Gurgaon, and other places. Now, we filed resolution plan, and resolution plan was filed after the approval of the COC on 7/11/2019. अब देखिए नवंबर 2019 में फाइल किया. उसके अगेंस्ट में होम बायर्स ने, अलग अलग होम बायर्स ने, कोई अपनी एसोसिएशन बना के आ रहा है, कोई वैसे आ रहा है, 26 ऑब्जेक्शंस वर फाइल्ड और 26 एप्लीकेशंस आ गई. आप सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और हम लोग ब्लेम करते हैं कि एनसीएलटी काम नहीं कर रही है. अब आप बताइए, उनको रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करना, उस पर फोकस करें कि पहले 26 एप्लीकेशन की ऑब्जेक्शंस को कंसिडर करें. डील तो करनी पड़ेगी. If somebody files an application, obviously NCLT will have to deal with that. So they heard all the applications and objections, dismissed them, and then approved the resolution plan. And I'm so happy to tell you that resolution plan was approved last week on मेरे ख्याल 7 या 8 जून को, अभी 2-3 दिन पहले ही ऑर्डर आया. अब देखिए सर, हमने नवंबर 2019 में फाइल किया और कब हमें ऑर्डर मिला?
जून 2021 के अंदर। चलिए मान लीजिए 6-7-8 महीने कोविड के निकल गए, दैट इज ऑफ कोर्स फाइन, बट स्टिल there was a huge delay. The delay is because the benches are overburdened with such kind of nonsense applications, I mean, which are not required. Okay, so now to overcome that situation, because NCLTs बहुत limited हैं और कैपेसिटी उनकी लिमिटेड है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 प्रोवाइजो ऐड कर दिए सेक्शन 7 के अंदर। गुप्ता जी एक बार किताब खोल लीजिए सर, लेटेस्ट वाली, और उसके अंदर 3 प्रोवाइजो इन्होंने ऐड करे हैं। अब ये 3 प्रोवाइजो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस आपके व्हाट्सएप पे देख रहा था, अगर हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं तो काफी क्वेश्चन इसमें से निकल जाएंगे। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे हैव कम अप फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर सिलेबस। ये पहले वाले सिलेबस में नहीं थे। हाँ जी सर। ये अमेंडमेंट जो है बाद में आई है। ये सर कैन यू, ये 13/3/2020 को अमेंडमेंट आई है, ठीक है सर। कोविड के टाइम आई है। ये सर कैन यू प्लीज रीड द फर्स्ट प्रोवाइजो सर। कौन सा सेक्शन है सर? सेक्शन 7। सेक्शन 7, ओके। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के अंडर फर्स्ट प्रोवाइजो है। हाँ, फर्स्ट प्रोवाइजो है सर, प्रोवाइडेड दैट for the financial creditors referred to in clauses A and B of subsection 6A of section 21, an application for initiating CIRP against the corporate debtor shall be filed jointly by not less than 100 of such creditors in the same class or not less than 10% of the total number of such creditors in the same class, whichever is less. तो पहला तो ये सर करेक्ट। तो पहले जो गुप्ता जी ने पढ़ा है, अब आप देखिए इसके अंदर बड़ा क्लियरली इन्होंने लिखा है, नंबर की बात कर रहे सर। हाँ, नाउ अ सिंगल होम बायर कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन, इट शुड बी फाइल्ड जॉइंटली एंड नॉट लेस देन 100 सच क्रेडिटर्स, दैट मींस 100 होम बायर्स, और या इफ योर नंबर इज 100 नहीं हो पा रहा है तो इट शुड नॉट बी लेस देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ होम बायर्स। सपोज टोटल नंबर ऑफ होम बायर्स 100 है, तो 10% को हम मान लेंगे 10 हो गए, तो 10 मिनिमम जब तक नहीं आएंगे, क्योंकि दो आगे लिखा हुआ विच एवर इज लेस। तो इफ देयर आर मोर देन 1000 होम बायर्स तो 100 चाहिए नंबर, अगर 1000 से कम है तो 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ होम बायर्स चाहिए विच एवर इज लेस। सो नाउ अ सिंगल होम बायर आफ्टर 13th March 2020 cannot file the petition. Now, this was one of the important things. Now let us read the second proviso now, sir. Second is provided further that for financial creditors who are allottees under a real estate project, an application for initiating CIRP against the corporate debtor shall be filed jointly by not less than 100 of such allottees under the same real estate project or not less than 10% of the total number of such allottees under the same real estate project, whichever is less. तो यहाँ पर सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी एक्स्ट्रा आ गया जो पहले में नहीं था सर। करेक्ट, नहीं उसमें डिफरेंस ये है, फर्स्ट प्रोवाइजो जो है वो दोनों क्लॉजेस के लिए आपको ध्यान होगा 21(6) से A एंड B। B deals with generally the class of creditors, A deals with the debenture holders and other things. Yes sir। वो दोनों के एक जनरल उन्होंने क्लास ऑफ क्रेडिटर वर्ड यूज किया है, बट यहाँ पे जो अलॉटीज के लिए जो यूज किया है वो सेकंड प्रोवाइजो है। सो पहला प्रोवाइजो अलॉटीज को भी लगता है और सेकंड प्रोविजो सिर्फ अलॉटीज के लिए। उन्होंने क्या किया, इसको और स्ट्रिक्ट कर दिया। क्या स्ट्रिक्ट किया सर इसको? हाँ जी। इसको और ये किया कि उन्होंने कहा साहब अब टोटल नंबर ऑफ होम बायर्स पे नहीं जाएंगे। सपोजिंग देखिए, अब मैं जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 5 प्रोजेक्ट है, अब 5 प्रोजेक्ट के अंदर सपोजिंग लेट्स टेक एन एग्जांपल, पहले प्रोजेक्ट में सपोजिंग से 500 लोग हैं, सेकंड प्रोजेक्ट के अंदर मान लीजिए 600 लोग हैं, थर्ड प्रोजेक्ट में 400 हैं, और पांचवें में चौथे में 300 हैं, और लास्ट में 200 है। ठीक है सर, टोटल अब कितना हो गया सर? एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 4 15 3 18 2000 हो गए। सो 2000 अलॉटीज को अगर आप लिखना चाहें एग्जाम्पल तो लिख लें, प्रोजेक्ट ए 500, प्रोजेक्ट बी 600, प्रोजेक्ट सी 400, प्रोजेक्ट डी 300, प्रोजेक्ट ई 200। 5 प्रोजेक्ट है, एक ही कंपनी चला रही है। 500 600 400 300 200 2000 हो गए टोटल। अब इस प्रोविजन को मैं पहले फर्स्ट प्रोवाइजो को लगाऊं तो उससे ये पढ़ने में लगता है कि साहब मिनिमम 200 लोग होने चाहिए, सॉरी 100 लोग होने चाहिए, और 10% ऑफ द टोटल नंबर, दैट मींस 200 विच एवर इज लेस। तो क्या हुआ, 100 इज द लेसर नंबर, सो 100 होने चाहिए। बट दैट इज फॉर बोथ दी सिचुएशंस। बट इफ वी रीड द प्रोवाइडेड सेकंड प्रोवाइजो, इट सेज
that the people should come project wise, and the limits of 100 and 10% apply project wise. So ऐसा नहीं है कि ए प्रोजेक्ट में से 50 लोग इकट्ठे हो जाएं, बी प्रोजेक्ट में से 60 लोग इकट्ठे हो जाएं और 50 और 60 मिला के 110 हो गए, उन्होंने कहा साहब हम सीआईआरपी स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मिनिमम 10% होने चाहिए, 100 या 10%। ऑफ कोर्स 50 तो 500 के बन ही रहे हैं, बट मैं एक बार एग्जांपल चेंज कर देता हूं। सपोजिंग प्रोजेक्ट ए में से 40 लोग इकट्ठे हो गए, प्रोजेक्ट बी में से 50 लोग इकट्ठे हो गए, प्रोजेक्ट सी में से 30 लोग इकट्ठे हो गए। अब टोटल मिला के तो ये 50, 40, 90, 120 हो गए। तो आपका फर्स्ट प्रोवाइजो तो सेटिस्फाई हो गया, आप जा सकते थे। लेकिन सेकंड प्रोवाइजो ने एक और रिस्ट्रिक्शन कर दी। नाउ इट सेज दैट मिनिमम 10% फ्रॉम ईच प्रोजेक्ट और 100 विच एवर इज लेस। सो अब एक प्रोजेक्ट में से, पहले प्रोजेक्ट में से 40 आया तो ये 10% नहीं बने। टोटल नंबर 10% नहीं माना जाएगा बॉस, या 100 नहीं माना जाएगा। एक सिंगल प्रोजेक्ट में से लोग उठने चाहिए। सो अगर पहले प्रोजेक्ट में से 50 या 50 से ज्यादा लोग आ रहे हैं, तब सीआईआरपी स्टार्ट हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। So it is now project wise. Please read this very carefully. Gupta ji, now please read it again. I think now people will understand. अब यहाँ project wise word लिखा हुआ है। Yes sir, please go ahead. हाँ, तो इसमें ये है ना सर, प्रोवाइडेड फर्दर, ये सेम प्रोवाइजो, मैं सेकंड प्रोवाइजो पढ़ रहा हूँ दोबारा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु आर अलॉटेड अंडर ए real estate project, an application for initiating CIRP against the corporate debtor shall be filed jointly by not less than 100 of such allottees under the same real estate project. और इसको not, underline हाँ उस जी, लाइन को अंडरलाइन कर रहे हैं, हाँ अंडर जी, द सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। प्रोजेक्ट में सेम में 10% या 100 लोग होने चाहिए। यस सर। अगला पढ़ू सर प्रोवाइजो, हाँ नहीं, और नॉट लेस देन 10%, और नॉट लेस देन 10%। हाँ जी, ये तो हो गया सर, क्लियर। हाँ जी, उसके आगे भी लिखा है सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। हाँ, यस सर, दोनों हाँ में दोनों, देखिए 100 के आगे भी सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लिखा है, 10% के आगे भी 10%। हाँ जी, I think things are very clear now, right? बिल्कुल So सर। that means they want lesser number of applications to come before the NCLT. That was the idea. Okay? चलिए अब आप थर्ड प्रोवाइजो पढ़ लीजिए, जो एक मतलब एक ट्रांजिशन प्रोवाइजो है बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी। थर्ड प्रोवाइजो कहता था, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द CIRP against a corporate debtor has been filed by a financial creditor referred to in the first or second provisos and has not been admitted by the adjudicating authority before the commencement of the IBC Amendment Act 2020, such application shall be modified to comply with the requirement of the first or second proviso within 30 days of the commencement of the said act, failing which the application shall be deemed to be withdrawn before its admission. या सो इसमें इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये था कि बेसिकली पीपल वांट, आई मीन द गवर्नमेंट वांटेड कि जो पेंडिंग एप्लीकेशन भी पड़ी हैं जब ये अमेंडमेंट आया है, एट द टाइम ऑफ द अमेंडमेंट सम एप्लीकेशंस वर पेंडिंग। सपोजिंग आई हैड ऑलरेडी फाइल्ड वन एप्लीकेशन, they say look, if your application is pending and not admitted, you will also have to comply with the previous petition. Otherwise your application will be deemed to be rejected. So they say that you must comply within 30 days. तो ये भी चैलेंज हुआ था होम बायर्स ने। ये अब तीनों प्रोवाइजो जो थे, ये तीनों के तीनों इन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट के बाद ये डिसीजन आया जो मुझे लगता है कि आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन शायद बाद में आया है। मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक जजमेंट है। हाँ करेक्ट। सो इसको आप ना पढ़ना, बट मैं आपको वैसे बता देता हूँ व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट लुक, वी आर अपहोल्डिंग ऑल दीज 3 प्रोवाइजोस। उन्होंने तीनों प्रोवाइजोस को अपहोल्ड कर दिया, और इवन ये 30 डेज वाला टाइम भी उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है। बट उन्होंने एक कंसेशन दे दिया अंडर आर्टिकल 142 अपनी पावर यूज करके कि 30 डेज का पीरियड आज की डेट से स्टार्ट हो जाएगा, जिस डेट को हमने ऑर्डर दिया। क्योंकि पुरानी डेट में तो आप कंप्लाई नहीं कर पाए, हमने स्टे दे दिया था। तो आज से 30 डेज के अंदर, रादर 30 डेज के बजाय शायद उन्होंने 60 डेज दे दिया था। आप 60 डेज में कर दो तो देन यू आर ओके, योर एप्लीकेशन पिटीशन विल बी मेंटेन्ड, अदरवाइज योर पिटीशन विल बी डिसमिस्ड एज विथड्रॉन। तो ऐसा ही हुआ। जितनी भी एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी थी, 99% पीपल वर नॉट एबल टू कंप्लाई विद दिस, क्योंकि 100 को ज्वाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता, आपके पास एड्रेस ही नहीं होते, नाम ही नहीं होते। तो आई थिंक दैट वाज डन। या राजीव चोपड़ा जी सेइंग 60 डेज फ्रॉम 15 जनवरी, बिकॉज 15 जनवरी की जजमेंट है।
तो 60 दिन उन्होंने टाइम दिया और उसके बाद सारी एप्लीकेशन 15 मार्च को सारी डिसमिस हो गई जो कंप्लाई नहीं कर पाए। So these are the provisions and the history of the historical cases of the under the home buyers. अब एक काम करते हैं गुप्ता जी सर, इसी के साथ में ना वो अमाउंट वाली भी बात डिस्कस कर लीजिए सर। 1 करोड़ कि इसमें कोई अमाउंट का भी रहेगा कि या 1 करोड़ से कम भी हो, 10% हो तो चलेगा? नहीं, वो कुछ लोगों का क्वेश्चन है। हाँ जी नहीं, वो देखिए उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईबीसी। हाँ जी सर। IBC relies upon the amount of the default. Number one, it says what is the trigger point. Trigger point is default. Yes sir. And my friend would have read the definition of default by now. Default के 4 elements हैं. There must be a debt. The debt must be due. Debt must be payable, and it must have remained unpaid. अब जब तक default नहीं होगा तब तक तो CIRP ट्रिगर ही नहीं हो सकती। तो अगर डिफॉल्ट ही नहीं है तो सेक्शन 7 कहाँ से ट्रिगर हो जाएगा? आप मुझे इस बात को बताइए। और डिफॉल्ट का फिर थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने, कहा जी 1 करोड़ रुपए। पहले तो आपको ये देखना कि डिफॉल्ट होना चाहिए। नंबर 2, आप सेकंड ब्रिज क्रॉस करेंगे कि 1 करोड़ मिनिमम होना चाहिए। फिर थर्ड ब्रिज क्रॉस करेंगे कि 100 पीपल और 10%। अब उनका ज्वाइंटली जितना भी जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं 10% या 100, उनका मिनिमम 1 करोड़ होना ही पड़ेगा। अगर 1 करोड़ नहीं है, आप 1 करोड़ से भी कम है, तो आपकी एप्लीकेशन नहीं है। टोटल मिला के 1 करोड़ सर, क्वेश्चन यही है। टोटल मिलाकर के 1 करोड़, टोटल मिला के ज्वाइंटली वो तो पॉसिबल है ना। देखिए सेक्शन 7 में देखिए उसको भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। आप गुप्ता जी एक काम करो, सेक्शन 7 को दोबारा पढ़ो। हाँ जी सर। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 पढ़ो। डाउट वाली बात ही नहीं है ना सर। सेक्शन पढ़ते हैं तो हाँ क्लैरिटी जी ऐसे ही आ सर। जाती है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 कहता है सर, ए फाइनेंशियल क्रेडिटर आइदर बाय इटसेल्फ और जॉइंटली विद बस यहीं रुक अदर। जाओ सर। हाँ जी, यहीं रुक जाओ सर। आइदर बाय इटसेल्फ और जॉइंटली। हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जॉइंटली, फाइनेंशियल क्रेडिटर जॉइंटली हैंड्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ, चलिए अब एग्जांपल लिख लेते हैं। बैंक ए, मैं सिर्फ बैंक की बात करता हूँ अभी, एक बार फाइनेंशियल क्रेडिटर होम बायर को छोड़ देते हैं। बैंक ए को ड्यू अमाउंट है 50 लाख रुपए, आउटस्टैंडिंग डिफॉल्ट है। आप डिफॉल्ट अमाउंट लिख लीजिए। बैंक ए का है बैंक बी को है 20 लाख, बैंक सी को है 35 लाख और बैंक डी को है 10 लाख। तो टोटल ड्यू हो गया आपका 1 करोड़ 15 लाख। ठीक है सर। अब मुझे ये बताइए सर, आईबीसी के अंडर कौन एप्लीकेशन लगा सकता है? इफ वी रीड सेक्शन 7, इफ वी रीड सेक्शन 7 केयरफुली, देन A प्लस B प्लस C प्लस D चारों जा सकते हैं। A प्लस B प्लस C जा सकते हैं। A प्लस B प्लस D जा सकते हैं। A प्लस B जा सकते हैं। A प्लस C जा सकते हैं। A प्लस D जा सकते हैं। एनी कॉम्बिनेशन, या A इंडिविजुअली भी जा सकता है। बिकॉज अब क्या हुआ, उसका जो डिफॉल्ट है वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर होना चाहिए कंबाइंड। अब आप एक काम करें सर, आपने सेक्शन 7 पढ़ा है, इसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है सर। 7(1) के नीचे एक एक्सप्लेनेशन है। ये जितने अभी प्रोवाइजो पढ़े हैं ना, इस प्रोवाइजो के नीचे एक एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फॉर द एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए। हाँ, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन, a default includes a default in respect of a financial debt owed not only to the applicant financial creditor but to any other financial creditor of the corporate debtor. So इसका मीनिंग क्या हुआ सर? Default should be, amount should be owed not only to me but default occurring to any other financial creditor, I can take advantage of that. तो अब देखिए A का डिफॉल्ट है 50 लाख, 1 करोड़ से ऊपर तो नहीं है, लेकिन इसका एडवांटेज डी भी उठा सकता है क्योंकि ओवरऑल टोटल डिफॉल्ट 1 करोड़ से ऊपर है, तो डी अलोन कैन ऑल्सो गो। इस एक्सप्लेनेशन का ये मीनिंग है। सो अगर मैं यही एक्सप्लेनेशन होम बायर्स के लिए भी लगाऊं तो आपको 1 करोड़ तो मिनिमम चाहिए, बट 1 करोड़ कंबाइन भी हो सकता है। जैसे कि मेरे को 10 लाख का है, आपको भी 10 लाख का है, तो 10 लोग ज्वाइन करके जिनका 1 करोड़ बन गया, एंड इफ दे आर क्रॉसिंग दैट ब्रिज ऑफ 10% ऑफ द टोटल होम बायर, दे कैन डू। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। बट सर, अगर हम ये बैंकिंग लॉ, जो बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी की रिपोर्ट देखें तो वहां पर कुछ और लिखा है। वहां तो ये लिखा कि इस तरह, हाँ जी, आपकी बुक में से ही पढ़ा था मैंने, जो सेक्शन 7 है उसको ऐसा लगता है कि ज्वाइन नहीं कर सकते।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा कुछ है ही नहीं, वहाँ तो बड़ा क्लियर है सर। और आई बीन ऑफ दैट ओपिनियन वेरी क्लियरली दैट दे कैन डू इट जॉइंटली। सिर्फ ऑपरेशनल क्रेडिटर जॉइंटली नहीं कर सकते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ज्वाइंट नहीं कर सकते हैं, बट ऑल अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कैन डू जॉइंटली एंड द ओवरऑल डिफॉल्ट शुड बी 1 करोड़ रुपीज। वो किसके नाम पे है वो उससे कोई लेना देना नहीं। सपोजिंग, चलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। SBI का डिफॉल्ट है 2 करोड़ रुपए का, बैंक ऑफ बड़ौदा का डिफॉल्ट है 0 का। मैं अब 0 पे आ गया हूँ। ठीक है सर। The question is, can Bank of Baroda go? Answer is yes, because the default, combined default to the financial creditors, if it is more than 1 crore, then any financial creditor can go. So बट सर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जी, एक का डिफॉल्ट है, बैंक ए है, उसका डिफॉल्ट है 60 लाख रुपए का, और ठीक है। बैंक बी है, उसका है 40 लाख रुपए का। ठीक है, तो क्या जा सकता है ए बैंक जा सकता है उस केस में? 100% जा सकता है। A alone, B alone, A plus B both together. ओके। Because the combined default, देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़िए ना सर, एक्सप्लेनेशन बड़ा क्लियरली कह रहा हाँ है। जी। The default includes not a default to me, but to default to any other financial creditor. अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, जो कई लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि सर मुझे पता कैसे चलेगा आपका डिफॉल्ट कितना है। वो प्रॉब्लम आपकी है सर, टू फाइंड आउट। वो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, आपको मिल जाएगी। ओके, फाइल बना के देना, मुझे सारे जो डॉक्यूमेंट एक कवरिंग लेटर ऊपर करके ना, वहाँ करके कवरिंग लेटर पेश करके। ठीक है सर। हाँ जी। सुशील जी, अपने को म्यूट कर लीजिए आप। अच्छा विश्वास जी, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा डिमांड नोटिस कैसे इशू करेगा। सर सेक्शन 8 में डिमांड नोटिस चाहिए होता है, सेक्शन 7 में तो डिमांड नोटिस चाहिए ही नहीं होता। सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना तो फिर कहानी खराब नहीं होगी। ओनली ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू इशू अ डिमांड नोटिस, नॉट द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। हेलो, ओके, यस सर, एनी क्वेश्चंस? बताइए सर। हेलो सर अपना नाम आइडेंटिफाई करिए सर, और अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। आशीष जी अगेन माई सेल्फ आशीष गुप्ता दिस साइड। ओके सर, सेक्शन 7 में डिस्प्यूट का कोई मैटर नहीं है। यदि कोई अमाउंट डिस्प्यूटेड है फाइनेंशियल क्रेडिटर का, इवन देन ही कैन गो। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली तो राइट। बहुत मिसयूज होगा सर इसका, कल को तो मिसयूज हो रहा होगा ऑलरेडी। बिकॉज मेरा जो एक बैंक में सपोज उसने 5 करोड़ की, सपोज 5 करोड़ की उसने मेरे पे पेनल्टी लगाई है, ठीक है जी, और उसका 2 करोड़ का इंस्टॉलमेंट ड्यू थी। मैंने तो 2 करोड़ की इंस्टॉलमेंट दे दी 30 जून को, मान लो, या 31 मई को मैंने इंस्टॉलमेंट दे दी। उसने दिखाया कि जी उसने पेनल्टी में एडजस्ट कर दी, उसने कहा कि ये तो इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू है। नाउ ही विल गो टू द CIRP। तो मैटर तो डिस्प्यूटेड हो गया ना। मैं तो कहूंगा मैंने दे दी है इंस्टॉलमेंट, वो कहेगा नहीं मिली है। देखिए ऐसा है, एट द एंड ऑफ द डे, इवन दो द वर्ड डिस्प्यूट इज नॉट रिटर्न, बिकॉज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को उन्होंने एक एडवांटेज दिया हुआ है। बिकॉज डिस्प्यूट, अगर एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट जो आप देखें वो सेक्शन 8 के अंदर ही मेंशन्ड है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर इस टाइप का कोई डिस्प्यूट है, वो कई बार NCLT जो है उसको कंसिडर कर लेती है। वो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके करते हैं, वो डेफिनेटली यू कैन रेज योर क्वेश्चन, बिकॉज आपको नोटिस जाता है, आप रिप्लाई करते हैं, तो उसको वो डिस्प्यूट्स को वो सेटल देख सकते हैं कि जेन्युइन है कि नहीं है। इतना काम उनको करना पड़ता है। दे हैव टू सी दैट इट शुड बी अ बोना फाइड अमाउंट व्हिच इज ड्यू। बट जनरली स्पीकिंग, हमारे क्वेश्चन सर, हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि डिस्प्यूट को है, तो हम तो उसको आंसर लिखेंगे ना, क्लीन में ही लिखेंगे कि नहीं, डिस्प्यूट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड। यू आर बिकॉज एब्सोल्युटली NCLT की वो तो अपनी स्पेशल उसकी पावर्स हैं उसकी। तो अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। यू विल राइट दैट डिस्प्यूट डज नॉट मैटर फॉर द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। करेक्ट। हेलो हेलो हेलो, मैं सुशील कुमार जैन। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए सर सुशील जी। हाँ, सुशील कुमार जैन बोल रहा हूँ सर। सर एक बात पता करनी थी, ये केस लो जो है 31/12/2020 तक आएंगे, या उसके बाद भी जो केस लो डिस्कस हुए हैं, जो डिसीजन हुए हैं, तो वो भी हमारे लिए जरूरी है? 31/12/20 तक आएंगे सर। 31/12/20 तक तो सिलेबस में लिखा हुआ है। हाँ जी, नहीं, केस स्टडी के बारे में पूछ रहा हूँ सर। जैसे केस स्टडी है हमारी,
1 जनवरी 2021 के बाद भी अगर मान लो कोई डिसाइडेड केस स्टडी है तो ऐसा केस स्टडी तो केस ऐसा जैन साहब, लेट मी आंसर दिस. देखिए, नंबर 1, द एंटायर सिलेबस इज अप टू 31 दिसंबर 2020. तो जो एक कट ऑफ डेट है वो सब पूरे सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है. वो कोड के लिए भी एप्लीकेबल है, रूल्स के लिए भी एप्लीकेबल है, केस लॉज के लिए भी एप्लीकेबल है, केस स्टडी के लिए भी एप्लीकेबल है. तो केस स्टडी भी, आप कोई लेटेस्ट जजमेंट है उसके ऊपर केस स्टडी आ ही नहीं सकती है. वो उसका एक और भी कारण है, वो बता देता हूँ. क्योंकि IBPI ने क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी बनाया हुआ है. वो रोज नए क्वेश्चन तो ऐड नहीं करते ना सर. तो वो जो क्वेश्चन बैंक बन गया वो तो क्वेश्चन उसी में से ही आएगा ना. तो उन्होंने क्वेश्चन बैंक जो बनाया वो 31/12/2020 तक ही बनाया. आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. एक क्वेश्चन हो रहा था सर, एक जो बिजनेस और प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में जो केस स्टडी है तो वो उसके लिए कुछ अलग से मतलब सिलेबस है या ये इसी में से ही आएगी जो IBC कोड? या देखिए, ऐसा है, as far as case studies are concerned, they are very typical. In fact, बिजनेस एंड प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में जो मतलब मैं बता रहा हूँ आत्म सर, प्रकाशन, मैं वही बता रहा हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ. केस स्टडीज आपकी 4 तरह की केस स्टडीज आती हैं. एक केस स्टडी आपकी CIRP और लिक्विडेशन से आएगी. एक केस स्टडी आपकी पर्सनल इंसॉल्वेंसी से आएगी. एक केस स्टडी आपकी एलाइड लॉज से आएगी. और एक केस स्टडी आपकी, वो एलाइड लॉज में मतलब कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप फर्म्स हैं. और एक केस स्टडी जो आपकी है वो बिजनेस एंड प्रोफेशनल एथिक्स से आएगी. तो ये जो केस स्टडीज हैं, दिस विल बी ऑल अ मिक्स ऑफ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल. तो उसके अंदर क्या होता है कि जो बिजनेस एथिक्स की है, आपको एक कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, वो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. कोड ऑफ कंडक्ट जो दिया हुआ है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशंस के अंदर दिया हुआ है, अपेंडिक्स में डाला हुआ है उन्होंने, वो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. मोस्टली केस स्टडीज उसी पे बेस्ड होंगी. आपको एक सिचुएशन दे देंगे और उसके बाद वो करेंगे. बेसिकली गुप्ता जी भी सेशन कराते हैं. IRP या RP के लिए जो मतलब ऑब्वियसली कोड ऑफ कंडक्ट तो उन्हीं के लिए है ना सर. और कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए है? बिजनेस एथिक्स तो उन्हीं के लिए है ना सर. उसी से रिलेटेड उसी से रिलेटेड है. देखिए, क्वेश्चन आएगा वो इंडिपेंडेंस के ऊपर आ सकता है, दैट इंडिपेंडेंस के लिए है या नहीं है. एक्चुअली क्या है, जैसे गुप्ता जी कराते हैं ऐसे हमने भी मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं केस स्टडीज़ के, और उसमें प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ की जाती हैं. तो अगर आप प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ अगर कर लोगे तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. तो जितनी कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना अच्छा रहेगा. दैट विल बी देयर. ओके Sir, Prashant Ravat here. I had a question regarding how do we establish that the debt is due from a real estate developer? Say, for example, if the period in which the house needs to be delivered, if that doesn't get delivered, can the debt be established? Or it is specifically required that the person should go to RERA, get an order in his favor, and then that debt is due and payable from the home buyer, from the real estate developer? How do we deal with this? Okay, going to RERA is not the prerequisite. It is only that when the debt is become due, and the due जो बनेगा, that you will have to see from the agreement itself. So we'll have to go to the contents of the agreement, and then you will have to make out your mind. So if the flat has not been delivered in time, so generally the clauses say that the amount will be refunded or it will be paid with some additional interest and so forth. So the due amount is generally the cut-off date for the delivery of the flats. Generally speaking, NCLTs are considering that. But still you will have to go to the actual agreement. You'll have to find it out. But you don't have to get any decree from RERA or any other court, consumer forum. That is not the prerequisite. Okay? Thank you, sir. गुड इवनिंग सर. राजीव चोपड़ा है. Yes, sir. Go ahead. जो 10% बायर्स है या थोड़ा जी आपकी आवाज थोड़ी लो आ रही है. Can you be little louder? I think I'm not able to hear you. Maybe I'll request others to mute themselves. या इज इट बोलिए सर. अब बेटर आ रही है आपकी. जी. तो इसमें जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, जब सपोज कैलकुलेशन ऑफ 10% या 100 बायर्स है, उसमें तो सिंपली नंबर ऑफ अलॉटीज आर टू बी काउंटेड. लेकिन जब ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो वोट करेगा COC में जाके, वो नंबर ऑफ अलॉटीज के हिसाब से डिसाइड करेगा 50 मोर देन 50%, या नंबर ऑफ अमाउंट पेड बाय ईच अलॉटी विल बी काउंटेड, उसका टोटल लिया जाएगा. नहीं, देखिए ऐसा है, आपको मैं बड़ा क्लियर कर देता हूँ, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. सिर्फ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के अपॉइंटमेंट के लिए वोट जो काउंट होता है वो 1 person 1 vote काउंट होता है. राइट.
राइट उसके बाद एंटायर आईबीसी के अंदर इट इज ऑन द वैल्यू ऑफ डेट बिकॉज द वर्ड एवरीवेयर यूज्ड इज वोटिंग शेयर, और वोटिंग शेयर की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इट इज ऑन द वैल्यू ऑफ डेट। तो जो मोर देन 50% की बात कर रहे हैं वो नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, वो मोर देन वैल्यू ऑफ डेट की बात कर रहे हैं। राइट और जो नंबर काउंट करना है अलॉटीज का फॉर 10% और 100 वो तो नंबर ऑफ अलॉटीज के हाँ साथ। वो तो खैर नंबर में ही आएगा, वो देखिए वो दोनों है ना, क्योंकि नंबर के साथ साथ वैल्यू ऑफ डेट तो 1 करोड़ है ही ना, राइट सबका मिला के 1 करोड़ नहीं होगा तो भी बेकार हो गया, आप चाहे 100 बंदे इकट्ठे कर लो, लेकिन अगर 1 करोड़ नहीं है काम खराब हो गया। तो उसमें दोनों कंडीशन है। ओके ठीक है। आशीष जी, सर जी सर। आशीष जी, अच्छा विजेंद्र आप पूछ लो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, मैं विजेंद्र गोयल बोल रहा हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था, बोलिए। जैसे अगर हमने एक शेयर एप्लीकेशन मनी दिया और वो उन्होंने टाइमली रिटर्न नहीं किया, हमारा पैसा शेयर एप्लीकेशन मनी का पेंडिंग रह गया 5 करोड़ रुपए, तो वो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर की या ऑपरेशनल क्रेडिटर की, तो दोनों जगह कहीं भी फिट नहीं होता हमारा, जो तो सेक्शन 7 कहता है कि फॉर वैल्यू टाइम वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, और जो हमारी 9-8 कंडीशन लगी हुई है वो कहता है कि 4 आपके, या तो आपका पैसा वो सर्विस का हो या गुड्स का हो या वर्कमैन का हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट की हो, कहीं भी फिट नहीं हो रहा हमारा सर। तो इस केस में क्या शेयर भी लगा हम जा सकते हैं इसके लिए? देखिए जनरली स्पीकिंग एनी मनी विच इज पेड टुवर्ड्स द शेयर एप्लीकेशन मनी डज नॉट क्वालिफाई टू बी यू सी फॉर इट इज नॉट अ बिकॉज यू डिड नॉट पे मनी टू अर्न इंटरेस्ट, बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सैटिस्फाई द कंडीशंस व्हिच आर मेंशन्ड इन सेक्शन 5(8), राइट? एनी मनी व्हिच इज डिसबर्स्ड अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो आपने कोई कंसिडरेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए ब्याज कमाने के लिए तो नहीं दिया था। बट इसमें एक कैच है, थोड़ा सा कैच ये है कि अगर शेयर एप्लीकेशन मनी कुछ पीरियड बाद 60 डेज का टाइम पीरियड है शायद कंपनीज एक्ट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ इट इज नॉट अलॉटेड देन इट इज ट्रीटेड एज अ पब्लिक डिपॉजिट। तो उसका नेचर चेंज हो जाता है, फिर वो शेयर एप्लीकेशन नहीं रहती, वो फिर एक डेट बन जाता है। बट डेट तो बन गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ब्याज तो फिर भी नहीं है, क्योंकि अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी होना चाहिए। सो अगर मैं ओवरऑल कंस्पेक्टस में देखूं तो शेयर एप्लीकेशन मनी इवन इफ इट इज ट्रीटेड एज अ डेट एज पर द लॉ, स्टिल इट इज विदाउट इंटरेस्ट। सो इफ इट इज विदाउट इंटरेस्ट देन इट विल नॉट क्वालिफाई एज अ फाइनेंशियल डेट। नहीं सर, एक पीरियड के बाद तो हमारे इंटरेस्ट लेवल की आ जाती है ना, कि अगर हम अगले 15 दिनों में नहीं वापस कर रहे हैं 60 दिन के बाद, तो कंपनी को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा फिक्स इंटरेस्ट के साथ। उसमें सर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आ जाती है। Of course, nobody has tried this. Maybe you can always try and set a precedent to this, because वो एक statutory provision है. You did not, you see, give the money for earning interest, because वहाँ पे word लिखा हुआ है disburse the money against the consideration for value of money. You did not disburse it for consideration. The law says you are entitled for a compensatory interest. That is a different matter. तो एक टेक्निकल व्यू एनसीएलटी ले सकता है, बट डेफिनेटली दिस कैन बी ट्राइड। ऐसी बात नहीं है, काफी प्रेसिडेंट सेट हुए हैं, तो ये भी प्रेसिडेंट सेट किया जा सकता है। ओके आशीष जी, एक सेक्शन है सेक्शन 20 दैट सेज कि 2x से ज्यादा की वैल्यू प्रॉपर्टी की वैल्यू है, then I need not to contact, I need not to have prior approval from COC or any financial creditor, and I can create security interest for interim finance. Correct sir? बट सेक्शन 28 कहता है कि प्लेन वर्डिंग है उसकी, सिंपल कहता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए यू हैव टू हैव सीओसी अप्रूवल। तो अब कंफ्यूजन कहाँ है सर? तो दोनों कंट्राडिक्शन हो गया ना सर। सर आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे ना। सेक्शन 20 इज एप्लीकेबल फॉर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो आईआरपी के लिए है, तब तक तो सीओसी होती नहीं है। तो आईआरपी को पावर दी हुई है ना। जब आप आईआरपी बन गए, कंपनी को गोइंग कंसर्न करना है, इंटरिम फाइनेंस चाहिए, आप कहाँ जाओगे? सीओसी तो आप ही बनाओगे ना, अभी तो सीओसी बनी नहीं, तो वो आईआरपी के लिए है। सेक्शन 28 जब सीओसी बन जाती है वो आरपी के लिए है सर। बट तो आगे चल के सेक्शन तो कहता है ना आईआरपी इज इक्वल टू आरपी, बराबर है, आगे चल के तो कहता है सेक्शंस में। अरे सर आप इतना ज्यादा डिटेल में मत जाओ, जस्ट अपना कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से रखो। आईआरपी के लिए सेक्शन 20 है, सेक्शन 28 जब आप आरपी बन जाओगे, अब मान लीजिए, चलिए अब मैं आपकी बात लेता हूँ, 20 भी कहता है 28 भी कहता है, और आप आरपी हो, तो बताओ कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? सो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करेंगे, स्ट्रिक्टर ऑफ दैट विल अप्लाई ना यार, उसमें क्या फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर 28 अप्लाई हो जाएगा। सो वी हैव टू सी इन द कॉन्टेक्स्ट, और लॉ के अंदर एक बड़ा एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है, टेक्स्ट एंड द कॉन्टेक्स्ट मस्ट मैच। सो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट 20 का कहता है आईआरपी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि उसके ऊपर कोई सीओसी नहीं है, वो तो भगवान है, वो कुछ भी डिसीजन ले ले।
बट जब आप आरपी बन जाते हो, आप सीओसी बन गई है, तब आप भगवान नहीं हो, तब आपके जो डिसीजन है दे आर सब्जेक्ट टू सीओसी सेक्शन 28 है। आई होप आई एम क्लियर सर। Good evening. Sir, this is Vivek. Sir, in Yes, sir. 7(1)(a), this proviso, the first proviso which we read, and Correct. second proviso for a Right. project related matter, should we read conjointly, or only for second proviso will help for project related cases? Because which we read in the first proviso, it was related to which we read was against for creditors of the same class, and same class word has been used. नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने वही आपको क्लैरिफाई किया था। इफ हम्म। यू रीड फर्स्ट प्रोवाइजो, उसमें लिखा है 21(6)(a) क्लॉज नंबर ए, क्लॉज नंबर बी, बोथ द क्लॉजेस आर कवर्ड। क्लॉज नंबर ए डज नॉट डील विद द अलॉटीज पर्टिकुलरली। Correct, correct, क्लॉज correct. नंबर ए टॉक्स अबाउट अदर पीपल एंड अदर थिंग्स। क्लॉज नंबर बी में जनरली अलॉटीज आते हैं। अब एक तो उन्होंने सिचुएशन दे दी, उसके बाद उसको और स्ट्रिक्ट बना दिया सेकंड प्रोवाइजो में। उन्हें कहा साहब अब आप अगर क्लॉज बी में फॉल होते हो तो प्रोजेक्ट वाइज फॉल करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. फर्स्ट जनरल अप्रूवल दे दी, जनरल अप्रूवल में फिर एक पावर खींच ली और उसको कहा कि अब आप प्रोजेक्ट वाइज आइए, अपना जो 10% या 100 नंबर है वो प्रोजेक्ट वाइज लेके आइए। हम ओवरऑल बात नहीं करेंगे, सीडी की बात नहीं कर रहे, अब हम प्रोजेक्ट वाइज बात कर रहे हैं। सर इस केस में ना प्रोजेक्ट में वो कहता है कि प्रोजेक्ट शुड बी, जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है उसकी, उससे डेफिनेशन पता लगेगी कि पर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कौन सा है। और यदि ये कोई केसेस में अप्रूव ही नहीं कराया हुआ तो कैसे पता लगेगा सर? नहीं नहीं, प्रोजेक्ट अगर अप्रूव ही नहीं है तो आप पैसा कैसे उसने इकट्ठा कर लिया सर? वो तो हो ही नहीं सकता ना। प्रोजेक्ट तो अप्रूव ही होगा और प्रोजेक्ट का नाम तो होता ही है, हर प्रोजेक्ट का नाम होता है ना। उसके कुछ फेजेस अलग अलग हो सकते हैं, वहां प्रॉब्लम आ सकती है। एक फेज 1 है, एक फेज 2 है। वेदर फेज 1 विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट प्रोजेक्ट एंड फेज 2 विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट प्रोजेक्ट, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। वो रेरा की अप्रूवल से देखना पड़ेगा। वो तो सर रेरा की वेबसाइट पर भी डिस्प्लेड है, जो भी पूरी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है वहां पर डिस्प्लेड। अगर उसमें नहीं अपीयर हो रहा तो नहीं है। अब मान लीजिए आपने कोई घर के पास ही कोई बिल्डर पकड़ लिया तो उसको आप नहीं ले जा सकते आईबीसी में, जो रेरा से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है जो सर है कि इस रेरा केस का में मतलब प्रोजेक्ट फॉर है तो आप एग्जांपल ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए रेरा की अप्रूवल अगर बिल्डर नहीं ले रहा और इलीगली पैसे इकट्ठे कर रहा है तो भी आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है। बट द पॉइंट व्हाट यू हैव टू सी इज कि अगर आपको लग रहा है कि प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में ही डिस्प्यूट है कि फेज 1 इंक्लूड होगा, फेज 2 भी होगा या नहीं होगा, तो लेट दैट क्वेश्चन बी डिसाइडेड बाय एनसीएलटी ना। वो तो फिर आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते ना, फिर तो हम एनसीएलटी जाएंगे, अपना केस रखेंगे। अगर एनसीएलटी को लगेगा कि एक ही प्रोजेक्ट है, एडमिट लेगा। अगर इफ यू आर नॉट एबल टू कन्विंस देन रिजेक्ट हो जाएगा। सर एक जो ये सब केस बहुत जो सारे इसको फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। सर जो इसको बैलेंस शीट बनानी होती है सीआईआरपी को, वो इनिशिएशन की डेट पे उसको इनिशिएशन की डेट की बैलेंस शीट वो देंगे पुराने वाले लोगों से, और डायरेक्टर्स वगैरह देंगे। उस दिन से बनानी है या 1 अप्रैल से बनाएगा वो बैलेंस शीट? 2 अलग अलग बनाएगा, कैसे बनाएगा? नहीं उसको बैलेंस शीट क्यों बनानी है, मेरे को बात समझ नहीं आई। सर उसे बैलेंस शीट मान लो एक सब जगह उसे प्रेजेंट भी करनी है, प्लस अपना स्टेटस भी दिखाना है कि मेरा कितना पोर्शन था, आरओसी में फाइल करनी है। तो वो 2 अलग अलग बनाएगा, 1 अप्रैल से इनिशिएशन डेट तक का, और इनिशिएशन से 31 मार्च, या पूरी 1 अप्रैल से 31 मार्च की बनाएगा? ऐसा है आशीष जी, ऐसा है, लेट देयर बी नो कंफ्यूजन। आरपी इज नॉट सपोज्ड टू क्रिएट एडिशनल बैलेंस, ही इज टेकिंग ओवर द कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न के अंदर जो भी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है जनरली 31 मार्च, तो ही विल क्रिएट बैलेंस शीट्स फॉर, आई मीन इट इज हिज ड्यूटी टू कंप्लीट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड गेट व्हाटएवर कंप्लायंसेस आर देयर। अगर सपोज ऑडिट नहीं हुआ, ऑडिट कराएगा, फाइलिंग नहीं हुई है आरओसी में तो फाइलिंग कराएगा, बट ही विल फॉलो द व्हाटएवर द कंपनी वाज फॉलोइंग। नाउ ही इज द बॉस ऑफ द कंपनी। उसकी कोई पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट से कोई नई बैलेंस शीट नहीं बननी है। ये कहाँ से कंफ्यूजन आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा सर, ये कहीं सेक्शन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अपने आप दिमाग में आते हैं सर कंफ्यूजन, ऐसा और कोई बात नहीं है सर। वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताऊं आशीष जी, देखिए क्या है, आप जितना इसको सिंपल रखोगे ना उतना आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करने लग जाओगे ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। सो इसको लेट्स कीप इट सिंपल। एक छोटा सा क्वेश्चन है, दैट इज अपार्ट फ्रॉम दिस होम बायर्स, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं रेगुलरली। सीआईआरपी में जाने के बाद
नॉर्मली ऐसा होता है कि कंपनी अपनी जीएसटी के रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं कर रही है और उन्होंने इनवाइसेस सामने शेयर किया हुआ है, तो ऐसे केस में एक टू बी जो है उसमें इनवाइस आउट ऑफ पॉपुलेटेड होके नहीं आ रहा है, तो रेसिपेंट ऐसे केस में क्या करे? क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं जीएसटी में कि जब तक टू बी में रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, इनवाइस अपलोड होके नहीं आएगा, तब तक वो क्रेडिट नहीं दे सकता। तो ऐसे केस में अथॉरिटीज उसको टैक्सिंग करके और शोकाज नोटिस इश्यू कर रही है कि हाउ डिड यू क्लेम दिस आईटीसी। सोनी जी, इसके लिए तो हमने जीएसटी एक्सपर्ट को बुलाया था ना, शिवाली गिरदरवाल जी को, अगर क्लियर नहीं हुआ था वहां पर वो, बट जीएसटी वाले सवाल सर हम आशीष सर से तो नहीं पूछ सकते ना। ओके सर एक क्वेश्चन ये था सर, एक ना ये सर, एक ये फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन ऑफ विंटर हिल्स, ये वाला जो केस है सर, इसमें क्लॉज नंबर 10 ऑफ द ऑर्डर कहता है कि कोर्ट ने डिसाइड किया, कहता है कि जी जो ये होम बायर्स है, दे बिकम द सिक्योर्ड बायर्स ओवर द सिक्योर्ड बायर, over the secured creditor. They become the secured creditor over the secured creditor. नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ सर, बल्कि उल्टा लिखा हुआ दे आर अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड कैसे हो गए सर? होम बायर्स आर नॉट सिक्योर्ड। को सिक्योरिटी दी सर, उसके ऊपर सिक्योरिटी दी कि जी ये सिक्योर्ड है। प्लस इसमें एक क्वेश्चन और था, मैंने आशीष जी मैंने आपको पूरा केस लॉ टेक्स्ट किया था ना, उसमें से मैंने वही केस लॉ से पढ़ा, तो बता दीजिए कहां पर, उसको पढ़ के बता दीजिए कहां पर। क्लॉज 10 एक बार पढ़ लीजिए ना, आपके सामने है तो। हाँ मैं खोलता हूँ। So by that time, can we discuss one simple query? The one we whenever we use the word allotee, तो हमारे कंपनीज एक्ट में तो अलॉटमेंट का एक अलग प्रोसीजर है। इसमें अगर लेटर नहीं देता है बिल्डर कि आपको अलॉटमेंट हुआ, तो व्हाट डॉक्यूमेंट्स कंस्टिट्यूट द वर्ड allotee? Agreement to sell or something like that? अगर एग्रीमेंट टू सेल एंटर हो गया तो अलॉटी तो आप बन ही गए ना, देन यू डोंट नीड सी पॉइंट इज लॉ। देखिए भाई, आई एम वेरी क्लियर इन माय माइंड, लॉ जो है वो इट इज नॉट अ सर्वेंट ऑफ इट इज नॉट यू सी फिक्स्ड, इट फ्लेक्सिबल। इफ आई एम एबल टू प्रूव एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, अगर मुझे कोई अलॉटमेंट लेटर नहीं दे रहा लेकिन मेरे से पैसे ले लिए और मुझे उसने एग्रीमेंट टू सेल साइन कर दिया, तो मैं अलॉटी तो बन ही गया ना। So whether I am given the letter of allotment or not, that does not matter. So therefore, the law is very flexible. You have certain documents, you are able to prove your case, go to the court and prove it. Sir, we consider value of the allotee के केस में जैसे supposedly I have booked 10 units, so I'll be considered 10 allottees or only single? Okay, if your name is appearing as one, even if you have been granted 10 flats, you will be considered as one allotee. Okay. But अगर आपका से joint नाम में है, आपका joint नाम में supposing x plus y है, फिर second नाम में x plus z है, तो then these may be considered as two different. सर ये clause 10 जो मैं read कर रहा हूँ सर, part of the clause है, ये कहता है the assets of the corporate debtor as per the code cannot be distributed which are secured for secured creditors. On the contrary, allottees brackets में दिया home buyers who are unsecured creditors, the assets of the corporate debtor which is the infrastructure is to be transferred in their favor, means unsecured creditors and not to the secured creditors. Client is something different. देखिए आप इसको, मैं वही बात बोल रहा हूँ ना, आप ये फिर आउट ऑफ कंटेक्स्ट हम इसको पढ़ते हैं, इसका इशू कुछ और चल रहा है ऊपर से, और इसको सिर्फ एक लाइन को पढ़ने से हम लोग कंफ्यूज। चलिए ठीक है सर, एग्रीड। अच्छा इसमें सर इनका हेयर कट कैसे डिसाइड होता है? एक मिनट, अब देखिए इसमें इन्होंने क्लियरली लिखा है ना कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, जो मैं आपको बात बोल रहा था, लिखा है कि नहीं लिखा है इस सेंटेंस में? हम कह रहे हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की जगह सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जो एसेट्स हैं उसके रिलेटेड टू द हाउस से रिलेटेड जो है। देखिए वो जब बेसिकली क्या है कि उन्होंने ये इस तरीके से एक सिंपैथेटिक वे में लिखा हुआ है कि वो जब इन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं तो इसके अंदर इनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए क्योंकि इन्होंने पैसे लगाए हुए। दैट इज अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर, बट दैट डज नॉट मीन दैट द होल लॉ कैन बी चेंज्ड। सर इससे नेक्स्ट क्लॉज में ये कहता है कि जो होम बायर्स हैं इनको दे कैन नॉट टेक द हेयर कट
तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सर इनको हेयर कट मिलता कैसे, अल्टीमेटली कैसे डिसाइड होता है फाइनली? मान लो किसी का वैल्यू 60% डिसाइड हुई है, 60% वैल्यू मिलेगी, तो इनको होम बायर्स को 40% उनका कैसे रिकूप होगा, क्या होता है सर, वो उसका प्रोसेस क्या होता है सर? अच्छा सर, देखिए नंबर 1, होम बायर्स आर गिविंग। आवाज थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, आवाज थोड़ी कम आ रही है सर। आप सर म्यूट कर लोगे तो फिर बेटर आ जाएगी, ओके सर। क्योंकि जब आप म्यूट करते हो तो बेटर हो अब जाता है। बनेगी। अब बेटर हो गया ना सर? तो सारी सारी गड़बड़ गुप्ता जी के यहीं से ही आ रही है। Okay, so see, the point is the whatever money you give, you are basically going to get the flats. So plan जो भी आते हैं generally speaking, उसके अंदर बिल्डर ये कहता है कि भाई मैं फ्लैट्स अलॉट करूंगा और कंस्ट्रक्ट करूंगा और अलॉट करूंगा. सो देयरफॉर जनरली स्पीकिंग देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ हेयर कट टू दी होम बायर्स. नाउ अब हेयर कट कैसे हो सकता है? वो दूसरे फॉर्मेट में होता है. जैसे हमारे एक केस में हुआ, क्या हुआ उसके अंदर, उसने आरए ने कहा कि साहब आपको मैं फ्लैट तो कंस्ट्रक्ट करके दूंगा, लेकिन जिस रेट पे आपने लिया था से 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में, वो मुझे वारा नहीं खाता. आप मुझे 500 रुपए वायबिलिटी गैप फंडिंग और करेंगे. अब ये हेयर कट हो गया ना एक तरीके से, कि 500 रुपए और देने पड़ेंगे आप पर स्क्वायर फीट. सो बिकॉज फ्लैट तो मिलना ही है, बट नाउ यू आर गेटिंग फ्लैट एट अ हायर कॉस्ट. सो इट इज एक्चुअली मीनिंग दैट हेयर, अगर आप दूसरे सेंस में देखें तो हेयर कट होम बायर्स को उससे तो नहीं मिल सकता कि आपको हम 4 कमरे के बजाय 3 कमरे दे देंगे. ऐसा हेयर कट तो हो ही नहीं सकता ना होम बायर्स के लिए. सो हेयर कट होम बायर्स का तो यू हैव टू कंट्रीब्यूट एडिशनल मनी बिकॉज़ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हैज गॉन अप. सो दिस इज द वे द होम बायर्स आर डिसाइडेड. ओके सर, Thank you. अलॉटीज को जैसे अनसिक्योर्ड का इस केस में सपोजिटली जैसे लेंडर बैंक एनओसी इशू करता है कोई अलॉटी को, सो दैट इज नॉट अ सिक्योरिटी टू द अलॉटी बेसिकली. नहीं, देखिए अलॉटमेंट जो आप कर रहे हो वो कोई सिक्योरिटी थोड़ी है. आपने चार्ज रजिस्टर किया क्या? ये तो आपको उसने कहा कि ये फ्लैट में आपको दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो मिलेगा आपको. ये तो क्लियरली लिखा होता है. तो जब तक कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा, आपका क्या राइट है इसके अंदर? आप ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे वापस ले सकते हो एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. तो देयर आर एंड सुप्रीम कोर्ट सपोजिटली सर, मैंने जैसे अलॉटमेंट जो मेरे यूनिट का था मैंने कैंसिल कर दिया, अभी तक कोई सीआरपी प्रोसीडिंग नहीं है. नाउ वेयर डू आई स्टैंड? आई एम स्टिल अ फाइनेंशियल क्रेडिटर. आई वाज अ अलॉटी अर्लियर, नाउ आई हैव कैंसिल्ड एंड डिमांडेड माय मनी बैक. फिर बिल्डर से कोई टर्म्स होती है कि भाई ही विल रिफंड माय अमाउंट इन सो एंड सो टाइम, वहां पे वो डिफॉल्ट होता है. देखिए सर, आपके क्वेश्चन में ही आपका जवाब है. आप कह रहे हो मैं अलॉटी रहा ही नहीं. जब आप अलॉटी नहीं रहे तो आप एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 58F में कैसे फॉल कर रहे हैं? वहां पे उन्होंने 2 वर्ड यूज किए, अलॉटी इन अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. सो इफ यू हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड योर फ्लैट, यू आर नो लॉन्गर एन अलॉटी. So how can you claim as a financial creditor status? Now you can file a claim when the company comes into CIRP, but you will be allotted a status of other creditors. ऐसा नहीं है कि आप claim नहीं file कर सकते. आप claim file कर सकते हैं, but not as an FC. Now you will file as an other creditor. ओके, थैंक यू. Okay? सर हेलो Yeah. सर, एक क्वेरी थी. जैसे जो बिल्डर बायर में लेट्स से 5 इयर्स का प्लान था कि 5 इयर्स में डिलीवरी मिलेगी फ्लैट की, बट आफ्टर 5 इयर्स उसमें जनरली पैनल क्लॉज होते हैं कि अगर नहीं होता तो इतने डिलेड चार्जेस या पैनल चार्जेस बिल्डर पे kरेगा. तो अगर बिल्डर वो पैनल चार्जेस पे करता है तो माय क्वेश्चन इज कि तब हमारा डेट ड्यू माना जाएगा या नहीं? क्योंकि एज पर एग्रीमेंट वी हैव एक्सेप्टेड कि आफ्टर 5 इयर्स वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द डिलेड चार्जेस एज पैनल चार्जेस. तो हमारा डेट इन माय ओपिनियन ड्यू नहीं माना जाना चाहिए. एम आई राइट? No, debt is still becomes due because it is related with the, you see, provision of the flat. You did not give the money to earn interest. Please understand that is only a penal clause. That if you delay, you will pay. That is fine. वो तो delay का penalty, उसने आपको penalty payment कर दिया, तो that does not mean the principal amount does not remain due. So या तो flat तो मिला नहीं आपको. So अगर flat नहीं मिला तो debt तो due हो गया ना. So value of the flat is something which we can claim, or the amount what we have paid along with that interest and penalty. What exactly will be considered? वैल्यू ऑफ फ्लैट नहीं क्लेम करेंगे सर. आई ऑलवेज से कीप इट सिंपल. आपने जितना पैसा दिया उतना ही लोगे ना. वैल्यू ऑफ फ्लैट क्यों क्लेम करोगे? ओके. हाउ कैन यू अनजस्ट एनरिच योरसेल्फ? वो फ्लैट आपने 50 लाख दिया तो आपको 50 लाख क्लेम कर सकते हो ना. अपना ब्याज क्लेम कर लो उसके ऊपर जो आपने करना है. थैंक यू सर. We can take one last question. Sir, Okay. sir, not related to this. Sir,
जो पब्लिकेशन आता है जो फॉर्म जी का है उससे बहुत कम पता चलता है कि कहाँ का प्रोजेक्ट है, कौन सा। सर वो ग्रुप में पहले भी बता दिया है, ग्रुप में बात हो जाएगी, वो डिटेल्ड एक्सप्रेशन आपको फॉर रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट लेकर के करना पड़ेगा। ओके सर इफ एनी अलॉटी इज रियल रिलेटेड पार्टी तो उसका वोट काउंट होगा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के उसमें शेयर में? नहीं काउंट होगा सर। फाइनेंशियल क्रेडिटर हु इज अ रिलेटेड पार्टी इज नॉट एंटाइटल्ड, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सीओसी। तो अगर मैं अपने सारे रिश्तेदारों को फ्लैट अलॉट कर देता हूँ और प्रमोटर हूँ मैं कंपनी का, सो देन दे विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सीओसी, देयर वोट विल नॉट मैटर। दैट इज गिवन इन सेक्शन 21। So thank you very much, sir. It was really a wonderful session. और members naturally feel enlightened. और बहुत सारे questions थे लोगों के, और उसके बाद भी we will be in touch with you and we'll see guidance from you. और for the information of members, I would like to tell